Good morning everyone. This is your Neetu ma'am and welcome once again to the digital classroom of DSA. Now how are you all? I hope you are good with your health in your homes. Be safe and just study hard. Now we have started the crash course, India crash course. We have done so many topics till now. We are continuing with the idioms and phrases. Yesterday we did some of the sentences. Today again I am continuing with the idioms and phrases. So today is the last day for the idioms and phrases. Tomorrow there will be a new topic for the India crash course 2020 and I hope आप लोग को idioms and phrases समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग practice, and I hope you all are enjoying doing all these sessions because we are teaching you with the interactive session. That means with the interactive board. Boring नहीं होना चाहिए, आप लोग को enjoy करना चाहिए पढ़ाई करना, and then only you will succeed. So are you ready for the idioms and phrases section? चलो, let's start. So my dear students, we have done 67 sentences of idioms and phrases. Today I am going to start with the sentence number 68, and the idiom in sentence number 68 is to beat about the bush. इससे पहले भी हमने ये idiom किया है in the sentence, तो आपको इसका meaning पता है. Now from this sentence, try analyzing yourself. Take it as a quiz and give your bonus point to yourself whenever you will click the right answer. So take it as a quiz. I'll solve here and you just solve in your mind and just analyze and cross check yourself. Okay. So to beat about the bush means हमने ये discuss किया है. To beat about the bush means just giving excuses, useless excusing and talking nonsense for a long time and not coming to the main point. किसका मीनिंग है टू बीट अबाउट द बुश? तो लेट्स चेक. ऐसा कोई ऑप्शन हमें मिल रहा है? नॉट टू कम टू द पॉइंट, विगरस सर्च फॉर द कल्प्रिट. ना हम यहाँ कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं झाड़ियों में, कल्प्रिट नहीं ढूंढ रहे हैं हम. इजिली अचीव सक्सेस विदाउट मच एफर्ट या वर्किंग हार्ड टू अचीव द गोल. नाउ पहले तो कल्प्रिट वाला सेंटेंस गलत हो गया. नेक्स्ट, इजिली अचीव सक्सेस, नो, सक्सेस की बात ही नहीं हो रही. आंसर है नॉट टू कम टू द मेन पॉइंट. अब सी, आपको हो सकता है ऑप्शंस डिफरेंट स्टाइल से प्रेजेंट किए जाएं. इससे पहले जब हमने करेक्ट ऑप्शन किया था इसी इडियम का, तो उसमें ऑप्शन था जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस एंड नॉट कमिंग टू द पॉइंट. ओके, यहां पर ऑप्शन है नॉट टू कम टू द पॉइंट. दोनों का मीनिंग सेम कन्वे हो रहा है. डोंट स्टिक एट द सिलेक्शन ऑफ सम पर्टिकुलर वर्ड्स. रटना नहीं है, मैंने पहले बोला है रटना नहीं है. यू मस्ट अंडरस्टैंड. अब ऐसा नहीं कि मैम इस इडियम का पहले मीनिंग तो आपने कुछ और दिया था, अभी मीनिंग कुछ और दिया है. मीनिंग और नहीं है, मीनिंग सेम है, जस्ट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स डिफरेंट है. यूसेज ऑफ वर्ड्स to convey the meaning is different, but the meaning is same. So let's check out the next sentence. Now he came to meet me when I was in dumps. Okay, हमने कल ऐसा ही एक idiom किया था, down in the dumps. Remember? Down in the dumps. मैंने आपको इससे मिलता जुलता भी एक idiom दिया था, down in the mouth. डाउन इन द डम्प्स, डाउन इन द माउथ मीन्स दोनों का मतलब क्या होगा? दोनों का मतलब हमने कल किया था सैड होना, डिप्रेस होना, परेशान होना. चेक आउट दैट. ही केम टू मीट मी व्हेन आई वाज इन द डम्प्स. वो मुझसे मिलने आई कब? जब मैं लो में था, लो स्पिरिट में था. इन डम्प्स में था, इन माउथ में था, मेरा मूड ऑफ था. नाउ सी, इन हाई स्पिरिट्स रॉन्ग, इन लो स्पिरिट्स ओके. टू बिजी wrong. Engaged in official work, wrong. The answer is in low spirits. Okay. Now through thick and thin. Through thick and thin means through thick and thin in all the conditions. हर एक condition में, अच्छे time में भी, बुरे time में भी. तो what can be the correct option? The correct option is under all conditions. Under all conditions. Through thick and thin means अच्छे और बुरे वक्त में. Now the next. Now the dispute regarding the emoluments of junior doctors. Emoluments of junior doctors came to a head this week. Emoluments means some perks, some benefits. Junior doctor किसी bonus या perks के लिए demand कर रहे थे और वो dispute. Now what do you mean by dispute? A small quarrel.
अ डिसएग्रीमेंट ऑफ व्यूज। और किस चीज पे आ गई वो डिस्प्यूट, लड़ाई, थोड़ा सा वो डिसएग्रीमेंट, बहस किस चीज पे आ गई? केम टू अ हेड। हेड मीन्स बहुत ऊपर, केम टू अ पीक। तो जब छोटा सा आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे आ जाता है तो क्या होता है? लेट्स सी। नाउ सेटल्ड एमिकेबली। नाउ एमिकेबली, एमिकेबल, फ्रेंडली। तो एमिकेबल का मीनिंग है फ्रेंडली। हम यहाँ डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, फ्रेंडली की नहीं, तो ये रॉन्ग। टुक अ टर्न फॉर द बेटर, नो। रिजल्ट इन सेंसलेस वायलेंस, वायलेंस हुई नहीं है। रीच्ड अ क्राइसिस, द नेक्स्ट इज रीच्ड अ crisis. The answer is reached a crisis. Now the trial was so important that the entire proceedings were held in camera. Now see the sentence. The trial, बात किसकी हो रही है? Trial. Trial means hearing of the court. कोर्ट की सुनवाई, कोर्ट में किसी क्रिमिनल की पेशी और उस पेशी का पूरी सुनवाई। ओके, The trial was so important that the entire proceedings, that means पूरा का पूरा जो proceedings हुई थी वो कैमरा में हुई थी। कैमरा में हुई थी, what do you mean by in camera? और वो भी ट्रायल। क्या कोर्ट की proceedings कैमरा में रिकॉर्ड कर सकते हैं हम? उससे पहले I am teaching this camera from a very long time, so I wish I would meet you soon after this lockdown. As soon as the lockdown will end now, I just want to meet you all soon and I want you to be in the class. I don't want to teach this camera. Okay, so now in camera, trial in camera means trial, जो trial हो रही है, जो पेशी हो रही है, that must be without the persons which are needed. जो persons उसके लिए जरूरी नहीं है, उनके बिना वो एक रूम में एक कैमरे के सामने रिकॉर्ड की जा रही है। पर ऐसा कैसे? क्या लीगल या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऐसे रिकॉर्ड हो सकती हैं? यस, व्हेनेवर देयर इज सम रिस्क, सम सीक्रेट और सम इंपॉर्टेंट प्रोसीजर इज देयर, व्हेन नो आउटसाइडर इज नीडेड, एट दैट टाइम द ट्रायल्स आर इन कैमरा, द ट्रायल्स आर हेल्ड इन कैमरा। अगर कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट है, उसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं, तो उसकी ट्रायल कैमरा में होगी। दैट मीन्स उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी और वो ओपन नहीं होगी टू द पब्लिक। क्या ओपन नहीं होगी पब्लिक? उसकी ट्रायल। दैट मीन्स नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होगी। वो रिकॉर्डिंग तो बाद में डिस्क्लोज होगी, लेकिन वो जो हमने ट्रायल किया है वो बहुत भीड़ भाड़ के बीच में नहीं होगी। ओके, नाउ सी, अ सीक्रेट इन स्ट्रिक्ट विजिलेंस। स्ट्रिक्ट विजिलेंस मीन्स नजर रखना, विजिलेंस मीन्स अलर्ट रहना। तो वहां नो, एडमिस्ट ग्रेट सिक्योरिटी, एमिस्ट मीन्स बीच में, इन द मिड ऑफ, ग्रेट सिक्योरिटी के मिड में, या नॉट ओपन टू द पब्लिक। ना, ट्रायल वॉज इंपॉर्टेंट दैट द इंटायर प्रोसीडिंग वर हेल्ड इन कैमरा। दैट मीन्स वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो सीक्रेट है, वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं थी। दैट मीन्स उस ट्रायल में पब्लिक इन्वॉल्व नहीं थी देखने के लिए। कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था बट पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया गया उस रूम में। ओके, नाउ द नेक्स्ट, टेक एक्सेप्शन टू। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेक एक्सेप्शन टू? वील डू दिस सेंटेंस एंड वील रीड द ऑप्शंस। नाउ सी द ऑप्शंस। टेक एक्सेप्शन टू में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव टू टेक विद डिफिकल्टी और डिफिकल्ट। नाउ एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन मतलब उसके जैसा कोई नहीं, सबसे अलग। तो डिफिकल्टी वाला ऑप्शन तो यहाँ गलत ही हो रहा है, डिफिकल्टी वाले दोनों ऑप्शन गलत। ना डिफरेंट या ऑब्जेक्टिव। टेक एक्सेप्शन टू मीन्स ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट पे नहीं जाएंगे हम। डोंट गेट टू द लिटरल मीनिंग ऑफ द इडियम। मैंने पहले ही बताया है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग कैलकुलेट करोगे तो इडियम का मीनिंग नहीं आएगा। टेक एक्सेप्शन टू मीन्स आपको उस पे ऑब्जेक्शन है। आई टेक एक्सेप्शन टू the policies of government. I take exception to some of the policies of the government. I take exception to the remark made by my colleague. तो आप जिस पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उसके लिए भी यूज द इडियम take exception to. तो बेस्ट आंसर इज object to. Now check out the next idiom. He faced the music for reaching home late.
ओके, जब आप घर लेट आ रहे हैं पार्टी करके, मम्मा या डैड आपको क्या सुनाते हैं, कौन सा गाना सुनाते हैं? नाउ सी, यहाँ पे म्यूजिक दिया है तो एक कुछ तो गाना सुनाते हैं आपके मम्मी पापा। कौन सा गाना? या स्कोल्डिंग का गाना, डांट का गाना। डांट पड़ती है घर आके, डांट पड़ती है कि दे जस्ट प्ले अ सॉन्ग फॉर यू इफ यू आर लेट एट योर होम। तो अगर आप कहीं से लेट पहुंच रहे हैं, घर लेट आ रहे हैं, तो पेरेंट्स आपको डांट लगा रहे हैं। नाउ चेक आउट, फेस्ड पनिशमेंट, पनिशमेंट नहीं दिया है, सिर्फ डांट लगाई है। एंटरटेनमेंट, नो। फेस्ड प्लेजर, खुश नहीं होंगे। फेस्ड रिप्रिमांड, नाउ रिप्रिमांड मीन्स रिब्यूक, मीन्स स्कोल्ड, मीन्स डांट पड़ना, डांट लगना। ओके, नाउ दो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी yet all his plans are built upon sand. Now, no matter उसके पास बहुत सारा पैसा है, पैसा बहुत सारा है, but all his plans are built upon sand. तो if you are having a foundation of sand, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी स्ट्रक्चर की फाउंडेशन अगर सैंड है, तो क्या वो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है? नो। सैंड कभी भी एक सॉलिड बेस नहीं देती, सैंड कभी भी एक सॉलिड बेस नहीं देती। इसलिए अगर हम यहाँ बोल रहे हैं प्लान्स आर बिल्ट अपॉन सैंड, उसके प्लान जो है वो रेत के ऊपर बने हैं, रेत का महल। दैट मीन्स जो कभी भी गिर जाएगा, जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। नाउ सी, बेस्ड ऑन इनएक्सपीरियंस, नो। रेस्टिंग ऑन चीप मटेरियल फाउंडेशन, नो। एस्टैब्लिश ऑन इनसिक्योर फाउंडेशंस, नो। रेस्टिंग ऑन इमेच्योर आइडियाज, दैट मीन बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, बचपना है उसमें, इमेच्योर है। हम यहाँ मटेरियल की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ कर रहे हैं उसके प्लान कैसे हैं, उसके आइडियाज कैसे हैं। बात आइडियाज की हो रही है, प्लान्स की हो रही है, जो कि इमेच्योर है क्योंकि वो सैंड से कंपेयर किया जा रहा है। दैट मीन्स जो ड्यूरेबल नहीं है, जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ओके, now sitting on the fence, we have done this idiom yesterday also. Sitting on the fence, मैंने आपको कल डायग्राम ड्रॉ करके भी बताया था। This is an area. Now this is the fencing done. This is part A, this is part B. And if you are sitting here on the fence, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, इधर जाऊं कि उधर जाऊं? Should I go to A side or should I go to B side? तो check out. Unbalanced, uncomfortable, coward या confused between two opinions या between two opinions, दो ओपिनियन में आप फंसे पड़े हैं। तो आंसर इज between two opinions, uncomfortable नहीं, unbalanced नहीं, coward नहीं। That means you are between two opinions, कि आप A के साइड जाएं या आप B के साइड जाएं, आप बीच मझधार में हैं। You are sitting on the fence, आप बीच में फंसे हुए हैं। Okay, now the next. Now the statement made by Pakistan about Kashmir problem was gall and wormwood. Now sentence ही आपको हिंट दे रहा है, अगर कश्मीर के प्रॉब्लम पे पाकिस्तान कुछ स्टेटमेंट देगा तो वो कैसा होगा बेटा, कैसा होगा? दैट मीन्स इंडिया के अगेंस्ट ही होगा, हमारे फेवर में तो कभी पाकिस्तान स्टेटमेंट देगा ही नहीं। और अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट पाकिस्तान दे रहा है तो हम लोग कैसा रिएक्ट करेंगे? वील बी एंग्री, वील बी एंग्री। तो वर्मवुड मतलब बिटर, विच कैन कॉज एंगर, विच कैन कॉज एंगर। ओके, नाउ वुडवर्म, नो, यहां कीड़े की बात नहीं हो रही, आप वर्म मतलब कीड़ा, वुडवर्म। अ ग्रेट फस, फस मीन्स कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बियॉन्ड रीजन, नो, आंसर इज अ सोर्स ऑफ एंगर। तो गॉल एंड वर्मवुड मीन्स अ सोर्स ऑफ एंगर या दैट कैन कॉज एंगर। ओके, नाउ ही स्टक टू हिज गन्स इवन इन द फेस ऑफ स्टिफ ऑपोजिशन। स्टक टू हिज गन्स, अपनी गन्स पर ही वो स्टक रहा, लगा रहा, अपने अड़ा रहा, वो अपने ही पॉइंट पे अड़ा रहा, नो मैटर सब लोग उसको अपोज कर रहे थे, स्टिल उसने अपना ओपिनियन चेंज नहीं किया, वो अपने ही ओपिनियन के साथ डिटरमाइंड रहा, वो अपने ही ओपिनियन के साथ स्टिक रहा, वो अपने ही ओपिनियन के साथ अड़ा रहा। नाउ क्लंग टू हिज वेपन, कोई वेपन की बात नहीं हो रही। केप्ट आर्ग्यूइंग, वो बहस नहीं कर रहा, आर्ग्यू करना, टू आर्ग्यू करना,
दैट मीन्स बहस करना। वो बहस कर ही नहीं रहा, वो तो अपने ही ओपिनियन पे अड़ा है कि जो मैंने चुना है आई विल गो विद दैट, तो आर्ग्यू नहीं। हेल्ड ऑन अगेंस्ट अटैक और आर्ग्यूमेंट, नो। आंसर है फॉलोड द चोजन पाथ, जो उसने चूज किया है वो उसी को ही फॉलो कर रहा है। ओके, नाउ टू बेट द हुक टू सूट द फिश। नाउ see the options: to prepare a box to pack the fish, to do things to please others, to look at things from other person's point of view, या to catch fish by providing suitable food. Now options भी आपको ऐसे दिए हैं जो idioms से connect हो रहे हैं। For example, idioms में अगर fish word है तो ऑप्शंस भी आपको फिश वाले दिए जस्ट टू कंफ्यूज यू, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको करेक्ट आंसर चाहिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लेट्स चेक इट आउट। नाउ टू बेट द हुक टू सूट द फिश मीन्स आप वो काम कर रहे हो जो दूसरों को पसंद है, दूसरों के अकॉर्डिंग, दूसरों को सूट करता हुआ आप एक्शन कर रहे हो। नाउ सी, टू सूट द फिश, आप हुक कैसा बना रहे हो मछली पकड़ने के लिए? जो मछली को पसंद है। आप मछली की पसंद से हुक नहीं बना सकते हो। दैट मीन्स टू बेट द हुक टू सूट द फिश मीन्स दूसरों को खुश करने के लिए कुछ भी एक्शन करना। नाउ सी, ये फिश वाले तो दो ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, नो। टू डू थिंग्स टू प्लीज अदर्स, प्लीज अदर्स मीन्स दूसरों को खुश करना। प्लेजर, इट्स माई प्लेजर टू मीट यू, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो टू प्लीज अदर्स मीन्स टू मेक अदर्स हैप्पी। तो करेक्ट आंसर इज टू डू थिंग्स टू प्लीज अदर्स। ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस। इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। दैट मीन्स वाइज मीन्स समझदारी, तो ये तुम्हारे लिए समझदारी होगी कि अगर टू लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, बायगॉन्स मीन्स जो बीत गया, हम हिंदी में बोलते हैं जो बीत गया सो बीत गया। That means never think about the past, because past will never come back. And if you will think about the past only, then you will spoil your future and your present will automatically be spoiled. So you will waste your present by thinking about the past and your future will get spoiled. इसलिए never think of the past. Just think of the present and just make your future. So bygones be bygones means let past go. Don't think about the past. जो बीत गया सो बीत गया। Now see, resist the past means past को रोक के रखो। past को हम रोक सकते हैं, resist कर सकते हैं, उसको face कर सकते हैं, वो बीत गया है तो this is wrong. recollect the past, past की memories को इकट्ठे करते रहना, no. revive the past, no. आंसर है ignore the past. that means जो बीत गया सो बीत गया, उस पे ध्यान मत दो। Clear? Now the next. Now his oily tongue has won him promotion. हमने कल इससे मिलता जुलता किया था elbow grease. elbow grease करना, किसी की चमचागिरी करना, किसी की बटरिंग करना, किसी को फ्लैटर करना। Same. Oily tongue, same thing. His oily tongue has won him promotion. तो उसकी oily tongue के कारण उसको प्रमोशन मिल गया। That means उसकी जो बात करने का तरीका है, मक्खन लगाने का तरीका है, दूसरों की फ्लैटरी करने का तरीका है, उस कारण ही उसको प्रमोशन मिला है। नाउ सी, सॉफ्ट स्पीच, वर्ड पावर, नो। सॉफ्ट स्पीच, नो। फ्लैटरी, फ्लैटरी मीन्स दूसरों की चमचागिरी करना, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना, दूसरों के बारे में यूजलेस तारीफ करना टू मेक देम हैप्पी। ओके, तो आंसर इज फ्लैटरी। नाउ एन एक्स टू ग्रिंड। नाउ व्हाट यू मीन बाय एन एक्स टू ग्रिंड? एन एक्स टू ग्रिंड मीन्स अपने खुद की कुल्हाड़ी ग्रिंड करने के लिए, अपने खुद के रिसोर्सेस। दैट मीन्स यू हैव अ पर्सनल रिसोर्स टू डू द एक्शन। तो डिफिकल्ट जॉब, नो। हार्ड लेबर, नो। पनिशमेंट, नो। आंसर इज प्राइवेट एंड्स टू सर्व। एंड मीन्स मीडियम, रिसोर्सेस। एंड्स मीन्स रिसोर्सेस, एंड्स मीन्स मीडियम। हमने एक ईडियम किया है, ही इज वर्किंग हार्ड टू मीट हिज एंड्स। टू मीट हिज एंड्स मीन्स पूरी तरीके से रिसोर्सेस मेहनत कर रहा है कि वो जितनी कमाई कर रहा है, जितने उसके पास रिसोर्सेज हैं, उससे उसकी अर्निंग निकल जाए। टू मीट हिज बोथ एंड सर्व, दैट मीन्स पूरी तरीके से सारे रिसोर्सेज से। एंड्स मीन्स रिसोर्सेज, मीडियम। Now when the police came, the thieves took to their heels. Check out the sentence. The police took to their heels. Sorry, the thieves took to their heels. जैसे ही पुलिस आई, चोर हील्स पहन के भाग गए। हील्स, कैन यू इमेजिन कि हील्स पहन के took to their heels? No, heels
यहाँ पर फुटवेयर की हील्स की नहीं, टुक टू देयर हील्स मीन्स तुम दबा के भाग गए, क्या बहुत तेज भाग गए, जस्ट दे वैनिश, जस्ट दे डिसअपियर एज सून एज दे सॉ द पुलिस। नाउ सी, वर टेकन बाय सरप्राइज, वो शॉक नहीं हुए, टुक शेल्टर इन अ टॉल बिल्डिंग, नो। चेक आउट द नेक्स्ट टू ऑप्शंस, टुक टू फ्लाइट, अनकंडीशनली सरेंडर्ड, नो। टुक टू फ्लाइट मीन्स बस हवा की तरह उड़ गए, टुक टू देयर हील्स मीन्स जस्ट रैन रैपिडली, एकदम से गायब हो गए। तो फ्लाइट मीन्स फ्लाई कर जाना, उड़ जाना, तो वो इतनी तेज भाग के गए कि दैट मीन्स दे जस्ट फ्लू अवे। ओके, नाउ इट वाज सच अ स्ट्रेंज अफेयर दैट आई कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट। तो व्हेनेवर यू जस्ट डू द टॉस, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि या हेड है या टेल है, either this side of the coin or that side of the coin, तो you can understand। और अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये head है या tail है, that means you are unable to understand। तो वो ये बोल रहा है I could not make head or tail, तो मैं कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो face it, no, tolerate करना, बर्दाश्त करना, remember याद करना, आंसर है understand it, that means he is not able to understand it। Okay, now on the spur of the moment, on the spur of the moment, उसी समय, just at that moment, उसी समय। Now when you will be giving the NDA exam, you have to choose the best option on the spur of the moment, that means उसी moment पर। बाद में आप डिसाइड कर रहे हो, नहीं, उसी मोमेंट आपको डिसीजन लेना है कि which answer is the, या which option is the best answer। Okay, now check it out। At once without any kind of deliberation, that means उसी समय, बिना किसी देर की, बिना किसी डिले की, उसी समय डिसीजन लेना है, and that is the meaning of this idiom, on the spur of that moment। Now he bids fair an excellent cricketer, bids fair means लगना, वो एक बहुत अच्छा क्रिकेटर लग रहा है मुझे, होगा या नहीं पर मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है या मुझे दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा क्रिकेटर है। ना एम्बिशियस रॉन्ग, अनलाइकली रॉन्ग, कॉन्फिडेंट रॉन्ग, आंसर है सीम्स लाइकली, मतलब मुझे वो लग रहा है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 87, ही इज डिसलाइक्ड बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। लोग उसको नापसंद करते हैं, क्यों नापसंद करते हैं? क्योंकि उसकी एक आदत है। क्या आदत है? पहाड़ बनाने का। पहाड़ बनाने का, पहाड़ किस चीज से बना रहा है? मोल हिल। रिमेंबर, हिंदी का एक मुहावरा है, राई का पहाड़ बनाना। ना, राई का पहाड़ बनाना मीन्स जस्ट क्रिएटिंग यूजलेस स्टफ फ्रॉम अ ट्रिफल इश्यू। बहुत सिली सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना देना, बात का बतंगड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना। दैट मीन्स क्रिएटिंग एग्जैगरेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, यूजलेस थिंग्स का एग्जैगरेट कर देना, बहुत बढ़ा चढ़ा देना। नाउ चेक आउट, एग्जैगरेटिंग भी दिया है, ओके, हम यहाँ देख सकते हैं। boasting wrong, taking undue advantage of favorable opportunity wrong, now giving great importance to trifles। now what do you mean by trifles? trifles means silly issues, या हम इसको बोल सकते हैं unimportant issues, unimportant। अब you only check out, exaggerating अकेला काम कर रहा है, ये सेंटेंस पूरा काम कर रहा है। exaggerate करना, बढ़ा चढ़ा के बताना, बट किसको? ट्रिफल्स को। दैट मीन्स छोटी छोटी बातों को, यूजलेस बातों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। सी, गिविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज। ओके, तो करेक्ट आंसर इज डी। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, या नेक्स्ट इडियम इज to put two and two together. Yesterday also we did one idiom like this, to put two and two together means, that means using logic, coming to a logical confusion, sorry, coming to a logical conclusion, not confusion। तो जो भी conclusion पे वो आ रही है वो एक logical conclusion है with the reason, with a logic behind it। Now see, to the brunt of wrong, to put off wrong, to put on a false appearance wrong, आंसर है to conclude from obvious fact। दैट मीन्स जो फैक्ट्स मिल रहे हैं उसको, जो लॉजिक्स, जो रीजन चाहिए वो फैक्ट से लेकर फिर कंक्लूड कर रही है। तो टू पुट एंड टू टुगेदर मीन्स टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट्स। नाउ सीमा इज अ लिटिल हार्ड ऑफ
हियरिंग। ईजिली समझ में आ रहा है हमें। सीमा इज हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स उसको सुनने में तकलीफ है, उसको सुनने में तकलीफ है, उसको हियरिंग में तकलीफ है। नाउ सी इनऑडिबल, इनऑडिबल मीन्स वो सुनाई ही नहीं दे रही, वो जो बोल रहा है वो हमको सुनाई नहीं दे रही, हम ये कह रहे हैं उसको सुनाई नहीं दे रहा। डिसइंटरेस्टेड नो, इनसेंसिटिव नो, आंसर इज डेफ। दैट मीन्स सीमा इज अनेबल टू हियर। हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स अनेबल टू हियर, उसको सुनाई नहीं आता है। ओके, नाउ ही यूज्ड हिज बॉयिश innocent looks to take people in. Now this is phrasal verb. To take people in means to cheat, to deceit. अपनी मासूमियत का फायदा उठा के वो लोगों को धोखा देता है। ओके, now amuse people means to make people happy. Unintended people wrong. Cheat people या accornate, this is wrong. Answer is to cheat people, लोगों को धोखा देना। Now a white elephant, हमने जब कलरफुल इडियम्स किए थे, रिमेंबर वी डिड द कलरफुल इडियम्स वीडियो, मैंने व्हाइट एलिफेंट कराया था आपको। व्हाइट एलिफेंट मीन्स अ वेरी एक्सपेंसिव बट यूजलेस थिंग टू मेंटेन। बहुत महंगी चीज है बट उसको मेंटेन करना बहुत महंगा हो रहा है, बट वो यूजलेस है। दैट मीन्स जितना उसका मेंटेनेंस जा रहा है उतनी उसकी वैल्यू नहीं है। ना सी एन एलिफेंट विद व्हाइट स्किन, हम एलिफेंट की बात ही नहीं कर रहे। अ कॉस्टली थिंग, ओके, अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, अ कॉस्टली बट यूजफुल थिंग। देखो तीन मिलते जुलते हैं, तो कॉस्टली बट यूजफुल थिंग नो, कॉस्टली थिंग कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। दैट मीन्स वो महंगी है पर उसका कोई यूज नहीं है, तो आंसर इज अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग। Now check out next. Being out of job, he is down in the mouth these days. हमने अभी किया है, I recently told you down in the mouth या down in the dumps means the same. दोनों का मीनिंग क्या है? मूड ऑफ होना, सैड होना, डिप्रेस होना। Now check out. Out of spirits, become smelly, always telling lies, always in a fighting mood. आंसर इज आउट ऑफ स्पिरिट्स। आउट ऑफ स्पिरिट्स के लिए एक और हमने फ्रेज किया है, इन अ लो स्पिरिट, इन अ लो स्पिरिट। तो इन लो स्पिरिट्स होना, आउट ऑफ स्पिरिट्स होना, सैड होना, डिप्रेस होना, सबका मीनिंग सेम है। एंड द इडियम इज डाउन इन द माउथ और डाउन इन द डम्प्स। Now 93, he is the only civil servant I know who hates red tape. Again, हमने रेड टेप वाला इडियम भी किया हुआ है कलरफुल इडियम्स में। देखो सबका रिवीजन हो रहा है, जो जो टॉपिक्स हमने अपने लेक्चर्स में करे हैं उन सब टॉपिक्स का रिवीजन हो रहा है। रेड टेपिज्म, I make you learn red tapeism. Red tapeism is a procedure which includes a lot of formalities, a lot of paperwork, a lot of documentation. ओके नाउ तो वो ये कह रहे हैं वही एक सिविल सर्वेंट है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट है जो रेड टेप को हेड करता है ना। रेड टेपिज्म हो, रेड टेप हो, दोनों का मीनिंग सेम है। एक्सेप्टिंग ब्राइब नो, करप्शन नो, फॉर्मल प्रोसीजर्स, डिसऑनेस्टी रॉन्ग। फॉर्मल प्रोसीजर्स मीन्स प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज। ओके, नॉट टू मीट वंस वाटरलू, yesterday also we did this type of idiom. To meet one's Waterloo means to meet, to face someone's defeat, अपनी हार का सामना करना। After facing a lot of challenges, ultimately he has to meet his own Waterloo. That means he has to face his own defeat. Now to meet a strong adversary, no. To meet with humiliation, humiliation means insult. To die fighting, wrong. Answer is to meet one's final defeat, अपनी खुद की हार का सामना करना। Now, he burnt his fingers by interfering in his neighbor's affair. हमने कल भी इसके जैसा एक इडियम किया है, to burn one's fingers. That means किसी का पैचअप कराते कराते या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद को प्रॉब्लम में डाल लेना। ओके, आप किसी की हेल्प कर रहे हो और उस हेल्प करते करते आपने खुद का नुकसान कर दिया, उसका मीनिंग होता है टू बर्न योर ओन फिंगर्स। नाउ चेक आउट, गॉट रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड मतलब टू रिप्रिमांड, टू गेट स्कोल्डिंग। बर्न्ड हिमसेल्फ नो, हम जलने की बात नहीं कर रहे, खुद का नुकसान करना है। गॉट हिमसेल्फ इंसल्टेड नो, आंसर इज गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल,
खुद को ही मुश्किल में डाल देना। तो टू बर्न योर ओन फिंगर्स मीन्स कि while helping others you yourself get into the trouble. Now we have done 95 sentence. Let's move to the next. All his schemes to murder the king. Oh my God, king के murder का plan बन रहा है. Ended in smoke. Now what do you mean by smoke? Smoke means धुआं. और जो चीज धुएं में है क्या उसका कोई बेस है? सब धुआं धुआं है. Everything in the fog. सब धुंधला धुंधला है. तो nothing clear, nothing solid. तो उसकी जो भी सारी स्कीम्स थी किस चीज से, किंग को मर्डर करने की, वो सब धुएं में खत्म हो गई. धुएं में खत्म हो गई दैट मीन्स कुछ भी सॉलिड नहीं था, कुछ भी स्टेबल नहीं था, सब धुंधला था, सब फिशी था, सब डाउटफुल था, सब अनक्लियर था. ना फ्रक्टिफाइड ग्रेजुअली, नो. वर डिस्कार्डेड, नो. केम टू नथिंग दैट मीन्स केम टू जीरो, दैट मीन्स कुछ बेस ही नहीं था, कुछ सॉलिड नहीं था, just came to nothing. तो ended in smoke means ended in zero, ended in nothing. तो answer is came to nothing. Now merry as a cricket. Now यहाँ पर जो cricket word है वो गेम की बात नहीं हो रही. हमने 11th स्टैंडर्ड की एक पोएट्री में भी किया है. हमने जब सोवर हमने पोएट्री की है, सोवर पोएट्री में हमने क्रिकेट बर्ड का, या चेरी ट्री में हमने क्रिकेट बर्ड का इंट्रोडक्शन दिया था. क्रिकेट इज अ बर्ड which is used to be happy always, used to be happy, जो हमेशा खुश रहता है. क्यों खुश रहता है? क्योंकि जो वो साउंड प्रोड्यूस करता है उससे ये लगता है कि दैट बर्ड इज हैप्पी. नो सॉरी, क्रिकेट इज एन इंसेक्ट, इट्स नॉट अ बर्ड, इट्स एन इंसेक्ट. तो क्रिकेट इज एन इंसेक्ट विच मेक अ साउंड एंड विच सीम्स कि इट्स हैप्पी साउंड. ओके, तो एज मैरी एज क्रिकेट, मैरी मीन्स हैप्पी. तो क्रिकेट की तरह खुश, क्रिकेट की तरह बेफिक्रा, क्रिकेट की तरह कुछ नहीं परेशान होना. तो क्रिकेट इज एन इंसेक्ट विच इज यूज्ड टू बी एज अ केयर फ्री इंसेक्ट. नाउ चेक आउट. टू एंजॉय अ गेम ऑफ क्रिकेट, टू डांस एंड सिंग, नो. टू बिकम केयर फ्री दैट मीन्स बेपरवाह होना, हमेशा एंजॉय करते रहना. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. नाउ माय आंट वाज इन अ फ्लटर लास्ट नाइट. मेरी आंट पिछली रात फ्लटर में थी. टू बी इन अ फ्लटर. अच्छा, आपके टमी में हैव यू सम सॉर्ट ऑफ साउंड्स कमिंग आउट, सम बटरफ्लाईज, अ डिफरेंट टाइप ऑफ समथिंग गोइंग ऑन इन योर टमी? कभी हुआ है? एक्सेप्ट व्हेन योर स्टमक इज नॉट वेल. अगर आपको इंडाइजेशन हुआ है, उस आवाज की बात नहीं कर रही हूं मैं. उसके अलावा कभी पेट में अजीब सी आवाज हुई है? हुई है. कब कब होती है बेटा वो आवाज? एक, व्हेन यू आर ऑन द स्विंग, जब आप झूले पे झूलते हो, अ बिग स्विंग, तो आपके पेट में बहुत अजीब सी फीलिंग होती है. ओके, उसके अलावा व्हेन यू आर नर्वस, व्हेन यू आर नर्वस तो अजीब सी पेट में फीलिंग होती है. रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट के पहले क्या होता है? पेट में एक अजीब सी फीलिंग होती है. यस, दैट इज नर्वसनेस. और उस नर्वसनेस के लिए हम यूज करते हैं इन अ फ्लटर. तो दैट इज इन अ स्टेट ऑफ नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, कि आपको पता नहीं क्या होने वाला है, नर्वस भी है, एक्साइटेड भी है. इसके लिए हम एक और इडियम यूज करते हैं, बटरफ्लाईज इन द स्टमक. तो क्या आपके पेट में बटरफ्लाईज हैं? नो. आपके टूथपेस्ट में नमक है? नो. तो आपके पेट में बटरफ्लाईज नहीं है. बट व्हेन यू आर हैविंग नर्वसनेस और एक्साइटमेंट, या तो आप नर्वस हो या बहुत एक्साइटेड हो, तब दो कंडीशंस में आपके पेट में वो फीलिंग होती है, जिसके लिए आप यूज करते हैं इडियम इन अ फ्लटर और बटरफ्लाईज इन अ स्टमक. Okay, now sentence number 100. We have completed a century today. Okay, to be bold, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. अगर आप बोल्ड हैं, अगर आप बोल्ड हैं तो आप कैसे हैं? आप किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं. And I know each one of you is bold enough to face the exam, and I know you will crack the exam with flying colors. Now, to show unwillingness, no. Stop by threats of violence, no. Keep at a distance, no. एंड्योर हार्डशिप और डेंजर, एंड्योर करना, फेस करना, बर्दाश्त करना, उसको सहन करना. तो कुछ भी मुश्किल आ जाए, हार्डशिप मीन्स मुश्किल, कुछ भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी खतरा आ जाए, आप उसका सामना करने के लिए तैयार हैं. दैट मीन्स यू आर बोल्ड इनफ टू फेस एनीथिंग. ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड 100 sentences. We'll do some more today and then we'll complete this topic here.
Okay, students, after completing the century, again we are starting with a new sentence. Now, she was in a brown study and did not notice my entrance. Now, अगर कोई आपके घर में घुस रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो that means आपका ध्यान कहाँ है? Just imagine your dad entered your room and you even didn't notice कि when he came to your room. तो अगर वो आपके कमरे में आ गए और आपको पता भी नहीं चला, तो क्या बोलेंगे पापा? पापा बोलेंगे कहाँ खोया हुआ है बेटा, क्यों खोया खोया है, क्यों खोया खोया चांद है. तो ब्राउन स्टडी मीन्स खोया खोया रहना, खोया खोया रहना. समटाइम्स इन द क्लास इवन ना, मोस्ट ऑफ यू जस्ट आर इन द ब्राउन स्टडी, खोए खोए रहना, अपनी ही दुनिया में रहना, अपने ही मूड में रहना, दैट मीन्स ब्राउन स्टडी. तो लेट्स चेक आउट द ऑप्शंस. रिवेयर, रिवेयर, फियर, स्लीप, ड्रीम. तो क्या वो सपने देख रहा था? नो. वो सोया हुआ था? नो. फियर में था? नो. रिवेयर इज द राइट ऑप्शन. रिवेयर मीन्स टू बी लॉस्ट इन वंस थॉट, अपने ही ख्यालों में खोना. डे ड्रीमिंग, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, डे ड्रीमिंग. ब्राउन स्टडी मीन्स डे ड्रीमिंग. वो दिन में ही सपने देख रहा था, सपनों में खोया हुआ था. अब ऐसा नहीं कि सपने देख रहा था, वो सपनों में खोया हुआ था. तो रिवेयर इज द बेस्ट ऑप्शन. ड्रीम नहीं, ड्रीम सोने के बाद, बट आप बैठे हुए हो, आप सो नहीं रहे हो, बट आप कहीं खोए हुए हो. दैट मीन्स यू आर लॉस्ट समवेयर, जिसके लिए परफेक्ट वर्ड है रिवेयर. दैट मीन्स जस्ट लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स. ओके, नाउ चेक आउट नेक्स्ट. इन दीज डेज ऑफ राइजिंग प्राइसेस वी आर पेइंग थ्रू आवर नोज. प्राइसेस राइज हो रहे हैं. अब पेट्रोल के प्राइस में अगेन देयर इज अ हाइक. तो चाहे कितना भी हाइक हो जाए, दैट इज अ नेसेसिटी, वी हैव टू बाय पेट्रोल. तो अगर हम बहुत महंगी चीज खरीद रहे हैं, बहुत महंगी चीज खरीद रहे हैं, तो वी आर पेइंग थ्रू आवर नोज. दैट मीन्स हम उस चीज के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं. क्यों ज्यादा पैसा दे रहे हैं? क्योंकि प्राइसेस राइज हो गए हैं. तो पेइंग थ्रू आवर नोज मीन्स जस्ट टू पे अ लार्ज अमाउंट, जस्ट टू पे अ हाई प्राइस. तो आंसर है पेइंग डियरली. पेइंग डियरली मीन्स पेइंग मच मोर अमाउंट देन इट्स वर्थ. जितनी उसकी वैल्यू नहीं है उससे बहुत ज्यादा दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? बिकॉज प्राइसेस राइज हो चुके हैं. ओके, नाउ टू कैरी द कन्विक्शन. कन्विक्शन, कहाँ सुना है हमने ये वर्ड कन्विक्शन? रिमेंबर संजू मूवी, रिमेंबर मूवी संजू? तो वेन एवर द रिपोर्टर्स वर राइटिंग शिट अबाउट द एक्टर, what his dad was saying again and again, and how he just faced one editor of the press कि whatever you have to write, you must write with the conviction. याद आया सीन? क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, कन्विक्शन से लिखो. कन्विक्शन से लिखना मीन्स प्रूफ के साथ लिखना. तो टू कैरी द कन्विक्शन, टू कैरी द प्रूफ, कि आप जो भी बोल रहे हैं उसके पीछे कोई रीजन है, उसके पीछे यू आर हैविंग अ सॉलिड प्रूफ. तो कन्विक्शन को याद कैसे रखेंगे? मूवी संजू. संजू मूवी में जब प्रेस में संजय दत्त के लिए बहुत गलत प्रिंट हो रहा था, तो his father used to say कि whatever you want to print, just print with the conviction. That means with the proof. Without proof कुछ भी मत लिखो. तो conviction means proof. Now see, extremely fond of anything wrong, feel displeasure wrong, to bear the proof of the truth. That means जो भी सच है उसके साथ उसका प्रूफ भी है. That means conviction है. Carry on करना, continue करना. तो conviction means proof. Truth का proof. Okay. Now check out the next. The captain played with determination because the honor means मान सम्मान. Honor of the team was at stake. टीम की इज्जत दाव पे लगी है. टीम की इज्जत का सवाल है, टीम की नाक का सवाल है, उसकी इज्जत दाव पे लगी है. Now see, very tense, no. At the top, no. Appropriate, no. In danger. दाव पे लगना, खतरे में होना, इन डेंजर होना है कि बचाना ही है. अब तो इज्जत की बात आ गई है, अब तो नाक की बात आ गई है, अब तो रेपुटेशन की बात आ गई है. तो एट स्टेक मीन्स इन डेंजर. Now the culprit was brought to book. Now see the hint, culprit. That means उसका इल्जाम उस पे साबित हो चुका है, वो culprit है. और culprit को हम क्या दे रहे हैं? उसको brought to book. That means उसका punishment डिसाइड हो गया, उसको पनिश कर रहे हैं. तो आंसर इज
punished. The culprit was punished. That means brought to book. Now, to leave no stone unturned, this is specially for you all. This is the last idiom for the idiom segment. Now, to leave no stone unturned, I'm just giving you one sentence and you all just calculate the meaning of that. We as the teachers and you as the students will leave no stone unturned to pass the NDA exam. To make you pass the NDA exam. We as a teachers are leaving no stone unturned to make you crack the NDA exam. And in the same way, I know you all will leave no stone unturned to crack the NDA exam. समझ में आ गया? Now check out the options. To keep clean and tidy? No. To try at most, to work enthusiastically? Okay. To change the things? No. To leave no stone unturned means to try at most. हर कोशिश करना, कोई भी एफर्ट नहीं छोड़ना, पूरी तरीके से जान लगा देना, जितना पॉसिबल हो उतना ट्राई करना. That means to give your best. So we are giving our best, you all also give our best, and just leave no stone unturned in the preparation of your syllabus so that you can crack the NDA exam. All this for today. So we have completed the idioms topic today. Tomorrow I'll start the new topic. Till then, study hard, work hard, be safe. Thank you.